we have Mr. Nitesh Jain in the room. He's a GST consultant. He advises many dealerships across Gujarat, Maharashtra, and rest of this country too. We would call upon his expertise today. He's flown down from Ahmedabad for us today. Thank you, Nitesh Bhai. And we all are eagerly waiting for your valued inputs. Thank you. Good evening. I've just requested for a caller mic till that comes. This sector has been very close to me. I've been advising on this sector since last 15 years. एक ऐसा वाहिद सेक्टर है जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर क्रिटिकल. कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे इतने सारे इश्यूज एक साथ क्रिटिकल हो. थैंक यू. Thank you. Yeah. So, before we delve into all the issues, this is the agenda that I'll be covering. First is the introduction, then the transactional issues, then the ITC related issues, and then the unique sectoral issues. This sector of yours is one of the largest in India in terms of all these parameters. GDP contribution, it is about 7.10%, up from 2% 2-3 decades ago. Employment, 2 crore people are directly or indirectly employed by you. Vehicles exported is 56 lakhs. It's down a bit in 22-23, but in 21-22 it was 35% up. FDI is one of the highest in this sector. सेक्टर की साइज के हिसाब से देखो तो सेकंड लार्जेस्ट इन टू व्हीलर्स इन द एंटायर वर्ल्ड, 6th largest in passenger vehicles, 7th largest in commercial vehicles, and largest in tractors. Now tax rates on cars, ये थोड़ा ऊपर का नीचे आ सकता है क्या? The slides are a bit bigger. The tax rates on cars internationally, Australia is one of the highest apart from India. वहाँ पे 43% is the highest tax bracket, indirect tax that I'm talking about. और कोई और tax नहीं है, कोई environment tax या कुछ नहीं है, 43%. So it ranges from 10% to 43% there. England, it is flat 20%. Canada, it is 10 to 20%. प्लस एन एयर कंडीशनिंग टैक्स, वहाँ पे पर वो जो यूनिट होता है आपका एयर कंडीशनिंग का, उसके ऊपर एक अलग टैक्स लगता है. देन देयर इज अ ग्रीन टैक्स. फ्रांस सेम है, वहाँ पे एक 20% प्लस 60 यूरोज पर HP पर हाउस पावर का टैक्स अलग से लगता है. जापान इज द लोएस्ट, 10% प्लस एनवायरमेंट टैक्स ऑफ 0 to 3%. दिस इज इंडिया. 5 to 18% electric vehicles and the handicap vehicles, with 29% on some cars, 31% on some cars, 43% on hybrid vehicles, 45% on some cars, 48%, and the highest is 50% SUVs. So we range from 5 to 50. ठीक है? और 50 हम लेते हैं SUVs पे, और वहाँ पे भी issues है. I'll be covering that. I'll straight away jump to transactional issues. Sales to SEZ units. I don't know how many of you have already received these notices. जब भी आप एक गाड़ी बेचते हो SEZ unit को, the SEZ unit comes to you with a request that we are not taxable, so whatever car you are billing to us should come at the basic value at 0 rated. Now, what is the care that you need to take? Yes, they are right. The sales to SEZ units are 0 rated. They are not exempt. They are 0 rated. They are deemed exports. This is the care that you need to take. They are 0 rated, but you need to fulfill these conditions. First, एक LUT, letter of undertaking, आपको फाइल करना है GST पोर्टल पे. Then you have to seek his SEZ registration copy.
whether he has a valid registration on the date of purchase of the car. Seek the authorized operation list. अब ये जब आपको लिस्ट देगा उसमें आपको कार का यूज कहीं दिखेगा नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सम स्टील प्रोडक्ट और सम अदर प्रोडक्ट. व्हाट नीड डज ही हैव फॉर द कार देयर? हाँ चलो ट्रक खरीद रहा है, समझ में आता है, पर कार की उसको क्या जरूरत है? तो ऑथराइज्ड ऑपरेशन लिस्ट में कार होती नहीं, ठीक है. बट ये सिर्फ सेफगार्ड्स है, आप लेके रखिए. सीक अंडरटेकिंग दैट कार इज बॉट फॉर एसईजेड ऑथराइज्ड ऑपरेशंस. उससे एक अंडरटेकिंग एक उसके लेटर हेड पे ले लीजिए, वेर ही ऑथराइजेस कि हाँ भाई मैं इसको गाड़ी को मैं एसईजेड के लिए ले रहा हूं. ऑप्शनल सेफगार्ड, दिस इज व्हाट आई एडवाइज टू माय क्लाइंट्स and this is saving them from those inquiries. Ask the customer to get the invoice endorsed by the SEZ officer. जब गाड़ी एंटर होती है तो एक SEZ का कस्टम्स का ऑफिसर वहां बैठा होता है, उससे वो इनवॉइस एंडोर्स करवा लीजिए, और वो एंडोर्समेंट ऑनलाइन SEZ पोर्टल पे होता है. वो डिजिटली साइंड आपको दे देगा और उसमें एक नीचे लाइन लिखी रहती है कि यस दिस इज फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस. वो आपको अगर मिल गया तो यू हैव नो बिजनेस सेइंग नो टू हिम कि नहीं मैं आपको गाड़ी जीरो रेटेड नहीं दूंगा, ठीक है. इन केस एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, यू हैव टू चार्ज हिम IGST. You cannot charge CGST and SGST even though that SEZ is in the same state. You will have to charge him IGST plus applicable cess. Sales to differently abled person. ये we all know कि handicapped persons को you have to sell the car at 18%. That is, there is a specific notification to it, and compensation says उनको लगता नहीं. But these are the conditions that customer has to come to you with a certificate which is given to him by the Deputy Secretary to Government of India from the Department of Heavy Industry. वहाँ पे वो एप्लीकेशन करता है, वहाँ डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह लगा के वहाँ से उसको सर्टिफिकेट आता है. उस सर्टिफिकेट में द मेक ऑफ द कार, मॉडल ऑफ द कार, द कलर ऑफ द कार, वो सब मेंशन्ड होता है. वही गाड़ी आपको उसको बेचनी है, आप कोई और वेरिएंट उसको नहीं दे सकते. Take an affidavit from the buyer that he shall not dispose of the car for the period of 5 years, because the notification that is there is a condition that he will have to use that car for at least 5 years, and he cannot purchase another car for that period. सर, ये फिजिकली चैलेंज का जो GST एग्जम्पशन है, दैट इज ओनली फॉर द पैसेंजर कार और टू व्हीलर आल्सो? No, it is only for passengers. Sales in case of lesser lessee, ये पहले बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, अब इतना नहीं है because everybody has gone through that learning curve. What happens in this transaction is that the lessors or the bigger banks they have arrangement with big companies where these big companies buy the car, they lease it to those corporates, and those corporates give it to their employees, right? So isme it is a bill to ship to transaction. You have to bill the car to that finance company, but ship it to the person or the employee of that corporate. तो RTO रजिस्ट्रेशन जो होगा वो उस एम्प्लॉई के नाम का होगा, पर जो बिल होगा, जो GSTR 1 आपका होता है, उसमें जो बिल चढ़ेगा वो होगा लेसर का. पहले क्या करते थे, हम सब B2C के बिल फाड़ दिए जाते थे, and then the lessor came back and said I have not received those credits, so please amend them. Now in the era of e-invoice वो बहुत difficult हो गया है. So you have to capture this transaction very correctly on day 1. Ownership of the car will remain with the lessor, but RTO में the possessor is the owner. RTO में registration जिसके पास possession है उसी का होता है. Discount given to customers. This is where many of the dealers are not following the law. When the customer comes, you give him some discount. फिर वो गाड़ी ले जाता है और फिर कहीं से फोन करवाता है कि सर और थोड़ा डिस्काउंट चाहिए था.
So these are post-sale discounts that you give to them once the invoice has already been made. So there is a certain law, क्योंकि जब आप 50,000 का डिस्काउंट बोलते हो उसको, जब गाड़ी बिल होने के बाद, तो उसमें आप क्या करते हो, रिवर्स वर्किंग करके जीएसटी का सेट ऑफ वापस ले लेते हो, so that your pocket does not get hurt by, it gets hurt only by 30,000 rupees, not the entire 50. But taking back that GST, you have to follow a certain procedure. There are 3 conditions. You have to have an agreement with the customer that you will provide him some discount later on. The amount is not required to be mentioned there. तो आपके जितने Z फॉर्म हैं, उसके अंदर आप एक डिफॉल्ट कंडीशन डाल दो, ये या ये अग्रीड है कि वी विल प्रोवाइड यू सम डिस्काउंट लेटर ऑन सम क्राइटेरिया. Don't mention the discount there, but that line will help you if you are providing him discount later on and getting the GST set off. So whatever discount you give him upfront on the invoice, no questions asked, you can give it to him. If it is a unrelated buyer, अगर related buyer है, then there are some issues. पर अगर related buyer नहीं है, तो you can very well do it. Post sale में agreement has to be there. Credit note must be linked with the earlier invoice. जो भी आप credit note issue करोगे 50,000 का, that credit note has to be linked with the earlier invoice. Input credit taken by the customer is reversed by him in case there is a B2B buyer. In that case, he will have to reverse that credit. So if all these conditions are not met, या agreement नहीं है, या any issue is there with the conditions, issue a simple credit note not showing GST thereon. Do not reduce the gross liability shown in the earlier invoice. So give him a 30,000 discount, not a 50,000 discount. And just a suggestion कि अगर 2 सीरीज रखोगे क्रेडिट नोट्स की, it will be better in assessments. एक GST क्रेडिट नोट की अलग सीरीज चला लीजिए और एक अलग जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स आप देते हो उसकी एक सीरीज अकाउंटिंग में अलग चला लीजिए. GST on insurance and RTO, I'll beg to differ with Bhagwat sir, wherein he said कि it is the responsibility of the dealer to get the car registered. No sir, it is not so. And this is what the Supreme Court says in KTC Auto. उसमें इशू ये था कि केरला का एक डीलर था जो कोहिकोड में उसका डीलरशिप थी और पौंडीचेरी में भी उसकी डीलरशिप थी. सेल्स वालों ने ये केस बनाया कि भाई पौंडीचेरी में टैक्स रेट कम है इसलिए आप ज़्यादातर गाड़ियाँ वहाँ डिलीवर कर रहे हो. तो उसने उस साल में 263 कार्स पौंडीचेरी में बिल की थी और वहीं पे आरटीओ हुआ था. तो उसने बोला कि नहीं, आपने आरटीओ से मुझे मतलब नहीं है, आपने गाड़ी यहाँ डिलीवर की है. So the Supreme Court said that the responsibility of getting the car registered is of the buyer and not the dealer. The responsibility of the dealer, because उस वक्त क्या था, ऑनलाइन CRTM का सिस्टम नहीं था, तो गाड़ी बकायदा डिलीवर की ड्राइव की जाती थी माहे, जो भी पौंडीचेरी का शहर था, उसके आरटीओ ऑफिस तक, और वहां रजिस्ट्रेशन होता था फिजिकली. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीलर की जवाबदारी है वहां तक गाड़ी पहुंचाना, पर रजिस्ट्रेशन की जवाबदारी है उस बायर की. ही मे फैसिलिटेट इट फॉर हिम ऑन हिज बिहाफ. फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस लेना आपकी जवाबदारी नहीं है, उसकी है, बट यू फैसिलिटेट इट. लोन्स भी आप फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है. सो Sir, this is just clarification. This might be before of online registration era. agree. And now there is a era of online registration. So, and the vehicle can be registered throughout the country. agree. So, now is the responsibility, because of this provision, agree. the dealer has to deliver vehicle with registration only. Sir, the law is you cannot deliver the car before it is registered. I am not on that. I am on the act of registration. You facilitate it. For example, मैं आपसे गाड़ी लेता हूं और मैं आपको ना बोल देता हूं कि मत करना, तो आप मुझे डिलीवरी नहीं दोगे, मैं आपसे वहां से गाड़ी निकाल नहीं सकता.
ठीक है, पर वो जवाबदारी आपकी नहीं है, जवाबदारी मेरी है जो आप मेरे लिए कर रहे हो. So there are two events here. One is delivery. Yes, I agree. Without registration, delivery cannot happen. But that part of CRTM, वो आपको करना है on my behalf. That is the only thing that I'm trying to say. Because with this, the moment you say you have to do the RTO, sir, you will fall in a bigger trap in GST. बिकॉज प्री डिलीवरी जो भी काम होता है और जो भी पैसा लिया जाता है उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ता है, राइट? बीयू भंडारी, देवन जी हैं इधर? सर, आई वॉज अबाउट टू कम. बीयू भंडारी में एडवांस रूलिंग वैट में ऑलरेडी लिया जा चुका है, एंड मोस्ट ऑफ द डीलर्स वेंट टू द हाई कोर्ट. द हाई कोर्ट अगेन थ्रू द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द असेसिंग ऑफिसर, saying that the tribunal has already reversed the view taken in बीयू भंडारी. और बीयू भंडारी में तो और भी इश्यूज है, इंसेंटिव वगैरह सब है, वो आ ही रहा है, ठीक है? सो माय हम्बल सजेशन, प्लीज डोंट गो फॉर एडवांस रूलिंग्स. डेमो कार पे भी मत जाइए, किसी पे मत जाइए. So I'll come back to this. The moment you say it is your responsibility, GST will get hit on RTO. Supreme Court has already said it is not your responsibility. And that part of the RTO Act has not been, the Motor Vehicle Act has not been changed. Right? So please, ये मत कह देना कि आपकी जवाबदारी. सो आरटीओ एट एक्चुअल्स. फिर अगर आप कोई चार्ज लेते हो आरटीओ रजिस्ट्रेशन कराने का 2000, 5000, 10,000, उनको खर्चों में मत डाल दीजिए. अगर आप उस पर जीएसटी भर दीजिए शांति से, नहीं तो डिफरेंस दिखेगा अकाउंटिंग में, और उस पर 18% टैक्स भर दीजिए. नो नो नो, नॉट द कार रेट. Because it is not your responsibility, you are just a facilitator. Yes. Yes, yes, yes. RTO, इंश्योरेंस, इन दोनों पे जो मेन जो बेसिक चार्ज है उस पे टैक्स नहीं है, कम वॉट में. I am talking about a facilitation charge that you take to do that activity. मैं इंश्योरेंस पे, यू डो नॉट चार्ज अपफ्रंट टू द कस्टमर, राइट? यू गेट अ कमीशन, यू पे ऑन दैट. वही सेम एनालॉजी लगेगी आरटीओ में. जीएसटी ऑन बुकिंग कैंसलेशन, मुझे नहीं पता सब क्या कर रहे हैं, पर इतना पता है सब बहुत कुछ कर रहे हैं. कोई नहीं भर रहा है, कोई 18% भर रहा है, कोई दिखाता ही नहीं है, ठीक है? एक सर्कुलर आया है अभी अभी अगस्त 2022 में, साल भर नहीं हुआ उसको. उसकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा. ये बुकिंग कैंसलेशन यानी कि जो कैंसलेशन चार्ज लेती है ट्रैवल इंडस्ट्री, उसी के ऊपर था ये, कि जब आप होटल बुकिंग कराते हैं या कोई एयरलाइन बुकिंग कराते हैं एंड यू कैंसिल, दे टेक 200, 500, 1000 रुपीज फ्रॉम यू. ये उसके बैकग्राउंड पे ये सर्कुलर था. और सर्कुलर में उन्होंने क्या क्लैरिफाई किया कि द कैंसलेशन चार्ज शुड बी असेस्ड एट द सेम रेट एज एप्लीकेबल टू द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि वो 500 रुपए पे जो एयरलाइन का टैक्स था 5%, उतना टैक्स लगना चाहिए, नॉट 18%. ये लोग गए थे रिलीफ के लिए, उनको रिलीफ मिल गया. पर मैं अगर ये सेम एनालॉजी आपके केस में लगा दूं, अब नीचे वाला ये लाल वाला पढ़िए. फोरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी इज स्टिपुलेटेड इन सच केसेस नॉट एज अ कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट एज अ कॉम्पनसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड and as a penalty for discouraging the non-serious buyers. Such payments being merely flow of money are not a consideration for any supply, hence not taxable. ऊपर बोलता है सेम रेट लगना चाहिए जो मेन सर्विस थी, नीचे बोलता है इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ मनी
टू कवर योर लॉसेस। आपने गाड़ी के लिए 25,000 का बुकिंग लिया, उसने कैंसिल करा दी, तो अब वो ऊपर में जाएगा या नीचे में? ये नरोवा कुंजरोवा है, ना इधर है ना उधर है। माई बिलीफ इज देर इज अ एंट्री टॉलरेटिंग एक्ट, उसमें डाल के 18% में निकल जाइए। क्योंकि अगर ऊपर वाला ले लिया ना आपके केस में, तो जो कार रेट है, और कार रेट कोई भी 29% से नीचे नहीं है, ठीक है? सो दिस इज अ टाइम बॉम्ब वेटिंग टू एक्सप्लोड। किसी दिन कोई होशियार आया, हाँ जी, हाँ उसका इधर मैंने नहीं डाला है, पर है लास्ट में एक है। हाँ नहीं नहीं, रेसिडरी नहीं, टॉलरेटिंग एक्ट का अलग है। हैंडलिंग एंड डेपो चार्जेस, अनदर फेवरेट ऑफ द इंडस्ट्री। अब वैट में ज्यादा था, जब अभी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पहले बहुत कुछ हो चुका है। वैट वालों ने वैट मांग लिया, सर्विस टैक्स वालों ने सर्विस टैक्स मांग लिया। ये अच्छा था कि एक्साइज नहीं मांगा। सो माई टेक इज, अगर कोई भी डीलर प्रिंसिपल ये बता दे मुझे कि व्हाट एक्टिविटी डू यू डू व्हेन यू चार्ज दिस हैंडलिंग, कोई उठ के ये बता दे मुझे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट सर्विस दैट यू प्रोवाइड। स्टॉक यार्ड से गाड़ी लेके आना, अच्छा आप मैं ये पैसा नहीं दूं तो नहीं लाओगे, लाना ही पड़ेगी आपको। डिलीवरी इज माई राइट, यू कैनॉट फोर्स मी टू गो टू द स्टॉक यार्ड। आर यू फोर्सिंग एनीबडी? जिससे आपने डेपो नहीं लिया, हैंडलिंग नहीं लिया, क्या वो स्टॉक यार्ड से डिलीवरी हुई? सो माई काउंटर क्वेश्चन एज एन ऑफिसर वुड बी दिस, हाउ वुड यू डिफेंड? So there is no activity. It is an additional margin that you take from the customer. हाँ जी सर। Yes. So exactly say that it is RTO handling charges. मैं क्या ना बोल रहा हूं, पर डू यू डू दैट? कुछ लोग आरटीओ में भी पैसा ले लेते हैं और हैंडलिंग भी लेते हैं, ठीक है? माई टेक इज, इफ यू आर चार्जिंग दिस फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, देन इट इज 18%. If there is no activity that you can legitimately prove, you can substantiate with documents or with something, then it will be at the car rate. Sir, in commercial vehicles, the vehicle has to be taken to the RTO for physical verification. It's still not online in Maharashtra. तो उसके लिए आप ये चार्ज ले सकते हो। Yes, because a Again, मैं driver वही from कह रहा the... हूं, आरटीओ फैसिलिटेशन के लिए अगर आप लेते हो जी। तो वो 18 में ही जाएगा। Okay. सो माई एडवाइस टू द क्लाइंट्स हैव ऑलवेज बीन, जो आप डिस्काउंट, क्योंकि हर गाड़ी पे 5-10 हजार रुपए का तो डिस्काउंट आप देते ही देते हो, तो सबसे पहले ये हैंडलिंग को नॉक ऑफ कर दो, तो ये बला आपके उसमें से निकल जाएगी। आप क्या करते हो, गाड़ी की प्राइस करते हो, हैंडलिंग वहीं का वहीं रखते हो। वैसा मत करिए, हैंडलिंग को पहले निकाल दीजिए। सर, हैंडलिंग की जगह पे हम सर्विस चार्जेस कहते हैं, और जो अभी ऑनलाइन दिस इज रिगार्डिंग टू व्हीलर, बिकॉज योर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इज कंसर्न टू द फोर व्हीलर. नाउ वी आर द हीरो एंड दैट इज अ टू व्हीलर डीलर, Yeah. and we are charging as a service charges, and nowadays whatever the data punching and a lot of activities we are doing on the behalf of the registration and the tax collection, everything, so we are charging as a service. Is it right or wrong? सर आप उसको, जो नामांकरण है ना, प्रॉब्लम वहां है।
So what ठीक है? should we nominate? Don't then? take 2 charges. फिर वहाँ पे 2 charge मत बता So दो. we are not taking 2 charges, only 1 charge. हाँ तो आप उसको बोल दो RTO registration facilitation charges. Facilitation charge. Facilitation. Facilitation. Okay. आप So उसको not a handling, service charges. ये सब क्या Service colored नाम charges हो for गए. the RTO registration and हाँ. all. Is it right? हाँ. Yeah. Okay. तो आप अगर इसको हैंडलिंग या डेपो, all these words have a history. अगर आप इसको गूगल में भी डाल दोगे ना, वो आपको ये नीचे लिख के आ जाएगा टैक्सेबल. प्रोविजनिंग ऑफ इनकम. बहुत बार क्या है, आपका नीचे का प्रॉफिट सेट नहीं होता, तो आप एक ये चीज डालते हो कि भाई हमारा जो फिनेंस इनकम है वो कैलकुलेट होता है अप्रैल मई जून में, पर आपको पता होता है कितनी है. तो so the question comes from the dealers is, can we make a provision of income as per accounting standards? There is no concept of provisioning of income. एक्सपेंडिचर का प्रोविजनिंग हो सकता है पर इनकम का नहीं हो सकता. सो मेनी ऑफ द ऑडिटर्स से नो, बट एज पर मी, मेरा सिर्फ मैंडेट है जीएसटी का. जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इनकम इन योर बैलेंस शीट. रीजन इज दैट सर्विस हैज नॉट बीन मेजर्ड येट बाय द कस्टमर, द फाइनेंस कंपनी. वहां से अप्रूवल आना बाकी है. सो आपका इनवॉइसिंग होता है अप्रैल में जून में, hence that provision will not be subject to GST. But please take care for writing a note below the balance sheet कि ये provision है और क्यों ये provision. Sir, I had a question for RTO service charge that you've mentioned. Ma'am, I have many slides. Can you just park those questions? I'll answer everything. आज ही मुझे ऋषभ भाई ने भेजा, ये आपके भी बहुत सारे WhatsApp पे आया होगा. AAAR announces that incentives पे 18% GST. ठीक है. I don't know how many have taken care to read the entire article. Incentives are not taxable at 18%. But the facts of that case, MEK peripherals, are unique. उसमें है यूएस कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने एक रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, और यूएस कंपनी ने डायरेक्ट रिटेलर को पैसा दे दिया. ठीक है. आपके केस में कभी ऐसा नहीं होता. आपके केस में ओई से ही पैसा आता है आपको. ठीक है. सो इन दोज केसेस मेनी ओईज हैव नाउ अंडरस्टूड दिस इशू. जीएसटी क्रेडिट नोट दे रहे हैं और कुछ में फाइनेंस क्रेडिट नोट दे रहे हैं, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे रहे हैं. तो दे वॉट एवर दे डिसाइड, मार्केटिंग सपोर्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी हैव स्टिल गिविंग दिस मनी. पहले देते थे. मार्केटिंग सपोर्ट अगर कोई देता है कोई भी ओई, तो उस पर 18% का आपको इनवॉइसिंग करना ही पड़ेगा. Additional safeguard is, please note, do not show the amount that you receive under financial credit notes under income head of your balance sheet. P&L में इसको आप गलती से भी अदर इनकम में मत डाल देना. आपके ऑडिटर्स अग्री करे ना करे, you will have to fight it with them. But there is a history that the department को पता वहीं से चलता है, वो फिगर वहीं से उठाते हैं. And then the litigation starts. I have been fighting service tax litigations for many dealers. और बेसिक जो आप उसमें देखना, तो पहली लाइन में ये लिखा था, इन्होंने इनकम में दिखाया है. जो मेन उनका आर्ग्यूमेंट है आपके अगेंस्ट, वो है इनकम में दिखाया. ठीक है. When you yourself are saying that this is an income for me and not a discount, how will you go and defend and say, okay, please give me relief because this is a discount? This is the entire argument. But there are now सर्विस टैक्स में बहुत सारे केस आ गए जहां पे उन्होंने बोल दिया कि there is nothing doing, no tax. Department is fighting it. न्यू कार कैपिटलाइज्ड, आप बहुत बार क्या होता है डायरेक्टर्स के लिए या कर्टसी कार के लिए आप उनको कैपिटलाइज करते हो फिक्स असेट में, राइट? नाउ हाउ डू यू रजिस्टर देम विद द आरटीओ? एक सेल्फ का इनवॉइस बनाते हैं और सेल्फ के इनवॉइस में आप, क्योंकि आरटीओ टैक्स अमाउंट इंक्लूसिव पे ही रजिस्ट्रेशन करता है, तो आप उसमें टैक्स भी दिखाते हैं. बट एज पर जीएसटी लॉ यू कैनॉट सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज टू योर सेल्फ. Hence, a B2B invoice to self is not possible, right? So what do? Is you make a B2C invoice, ABC Dealer Limited to ABC Dealer Limited.
और फिर आपकी गाड़ी तो रजिस्टर हो जाती है, और आपके GSTR 1 में क्योंकि वो B2C इनवॉइस था तो वो B2C टैक्स भी चला गया, यानी आपने आप ही के गाड़ी पे टैक्स भर दिया. The legal provision is that if you are using the car for your directors, you step out from the shoes of the dealer and you become a normal person. तो आपको ITC नहीं मिलेगी उस गाड़ी की, ठीक है. पर अगर आप ITC रिवर्स कर दोगे और यहां B2C में भर दोगे तो इट वुड बी अ डबल वैमी. So this is the legal, but you, because of the RTO, as I said, this is a unique sector जहाँ पे products get registered. Most of the industries, the products कोई registering authority नहीं होती. So in your case, B2C वाला ही एक practical way out है. Used car sales by a dealer. अब यहाँ पे दो मॉडल है आपके पास. There is a park and sell and there is a buy and sell. एक है जहां पे आप खुद आपकी रिस्क पे गाड़ी ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कटारिया में, सॉरी ये मारुति में है, वेर यू बाय द कार इन ट्रू वैल्यू, एंड द अदर इज अ कमीशन बेस. दोनों में द की इज डॉक्यूमेंटेशन. दैट इज व्हाट इज लैकिंग. जैसे आप अगर ट्रू वैल्यू का देखेंगे तो उसमें पूरी बुकलेट होती है जो आप साइन करवाते हैं, ठीक है. प्रैक्टिकली द रिस्क इज ट्रांसफर्ड टू द डीलर. In the commission model, the risk is not transferred. वो DSA आता है, वो गाड़ी लेके चला जाता है और जो कमीशन होता है आपको दे जाता है. So ensure which model you follow and basis that make the documentation proper. क्योंकि दोनों में टैक्स पूरा कंपोनेंट अलग है. एक मार्जिन स्कीम में जाएगा जहां पे डिफरेंस के ऊपर टैक्स है. अगर नेगेटिव डिफरेंस है नो टैक्स, पॉजिटिव डिफरेंस है ग्रॉस फुल टैक्स. Now here the question comes, I think I have taken that slide, कि जो आप खर्चे करते हैं रिफर्बिशमेंट में, उनकी ITC मिलेगी कि नहीं मिलेगी. You will get those credits because margin में वो रिफर्बिशमेंट का अमाउंट इंक्लूडेड है. So gross margin पे आपको 18 या 12% whatever tax rate लगाना है as per the model of the car, less the ITC on the refurbishment expenses. सेम राइट ऑफ राइट बैक. आप मार्च एंड में बहुत सारे आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स को आप राइट बैक या राइट ऑफ करते हैं, ठीक है. बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ध्यान ही नहीं रखते और ज्यादा पैसा देके चले जाते हैं, ठीक है. वो आपके आ जाते हैं इनकम साइड. बहुत सारे डेटर्स हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, तो ये सब मिलके एक नेट फिगर आ जाता है इनकम साइड में. उस पे क्या करने का. राइट बैक ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स वेयर वी हैड अवेल्ड ITC. अगर आपका कोई क्रेडिटर है जिसका आपने कोई एक्सपेंस में परचेज किया था और उसकी ITC ली थी और उसको कम पेमेंट दे रहे हो और इसलिए आप राइट बैक कर रहे हो, देन दैट प्रोपोर्शनेट ITC विल हैव टू बी रिवर्स्ड. ये राइट बैक पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है. In case of creditors where we had not availed ITC, there would be no GST payout. Just merely because there is an accounting entry based income, tax नहीं लगता. There has to be an actual supply of goods or service, which is lacking in the second case. In case of write back of credit balances lying in customer accounts, तो अगर आपने कोई tangible supply किया था जो आप बिल करना रह गया, मोस्टली ये RTO का ही होता है, या कोई एक्सेसरी आपने बेची बिल करना रह गया या कुछ ना कुछ, तो उस केस में आप जो भी रेट है उसका लगा के आपको भरना पड़ेगा. If the customer had paid more amount than actually required, then write back of the same would not involve any GST payout. Very easy to say for me, very hard to get it assessed. मैं इधर आपको लॉ बताने आया हूं, असेसमेंट आप खुद देखेंगे. वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस असेस्ड. सो व्हाट वी डू इज प्रैक्टिकल कॉल है, अगर कहीं डाइसी लगता है तो 18% भरवा के खत्म करवाते हैं. डेमो कार रिपेयर बिलिंग. पहली बात तो ये थी कि आपको डेमो कार की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं, ठीक है.
दूसरा है उस डेमो कार को मैंने रिपेयर कराया, खराब हो गई, कुछ हुआ, तो उसकी आईटीसी मिलेगी कि नहीं? Many of your dealer friends have gone to various advanced rulings on as usual वो वहां से variety of orders आए हैं, ठीक है? Fortunately गुजरात में कोई नहीं गया, and I say fortunately because क्योंकि आप अगर उन दो इंसान जो वहां पे टैक्स लेने बैठे हैं उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछोगे, डेमो कार किसके लिए खरीदते हैं अपन? डेमो में ही वर्ड है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। जब आप एंट्री पढ़ते हो आईटीसी की, वो बोलता है सप्लाई ऑफ सच कार्स अगर है, आप खरीदते हो बेचने के लिए, तो क्रेडिट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। सो द फर्स्ट यूज प्रिंसिपल, जो हम हमारी लैंग्वेज में ही बोलते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट यूज दैट यू बाय द कार फॉर? इन डेमो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन, टेस्टिंग, कस्टमर को दिखाने के लिए। इट इज नॉट फॉर सेल। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। नाउ where a dealer is involved per se in selling of cars, he'll need some sample goods to show to their clients. आज मैं पेन बेचता हूं तो मैं 10 पेन यूं ही रखूंगा देखने के लिए। अब मेरा प्रोडक्ट चलता है रोड पे तो मैं क्या करूं? Right? So that entry will not restrict you there. Yes, I have purchased this car to sell. And I am in a general business of selling of cars. I am purchasing cars and selling cars. Out of the 500 cars that I sell, only 50 or 30 or 20 are demo. Right? So, coming back to this demo car repair billing, yes, you will get the credit. सेल ऑफ ट्रक, चैसी एंड बॉडी, इधर से किसी सर ने पूछा था, आई डिडंट फॉलो, थोड़ा आधा मराठी में था, पर इधर भी इंडस्ट्री एक अलग अलग तरीके का काम कर रही है। अ कस्टमर कम्स टू मी एंड सेज कि आई वांट एन आरएमसी ट्रक, मेरे को उस पर आरएमसी बॉडी चाहिए या टिपर की बॉडी चाहिए। आपके पास आती है चैसी, आप बेचते हो चैसी, चैसी इज अंडर 28%, राइट? अगर आप उसको ये बोल दो कि भाई ठीक है मैं ही आपको बॉडी बना के देता हूं, बॉडी इज अंडर 18%, तो नेचुरली एक आर्बिट्राज खड़ा होता है। इफ यू एज अ डीलर आर गेटिंग दैट वर्क डन एंड सेलिंग द एंटायर प्रोडक्ट एज वन, बिकॉज फिर आप उसके ऊपर से आरएमसी निकाल नहीं सकते कि ले ये रहा चैसी, ये रहा आरएमसी या टिपर बॉडी। So this entire thing will go in 28% because the principal supply is chassis, right? But if you want that arbitrage to be passed on to the customer, then you will have to bill him the chassis, tell him that I'll send this vehicle to the body shop worker for you, and you take the delivery from there. Then he will bill 18% to him. I will bill chassis, and whatever commission, whatever you want to take from the body job worker, you can take it back. But do not sell body at 28%, sorry, the chassis at 28% and the body at 18% in the same invoice. Please don't do that mistake because there is a specific circular for that. I have written the name of the circular, specifically जो मैं कह रहा हूँ वो इसमें लिखा है। I'll move to ITC now. ये कुछ 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं ITC के, सिर्फ रिफ्रेश दबा रहा हूँ। You'll have to have the furtherance of course of business होना चाहिए, invoice आपके पास होना चाहिए, has received the goods or services, payment is made within 180 days. ये पता नहीं सबको हो गई, अब तो 4, 5, 6 साल हो गए। 180 दिन में आपके वेंडर को आपको पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो we'll have to reverse that credit on the 179th or the 180th day, आपको रिवर्स कर देनी है क्रेडिट। अगर 181 दिन हो गए तो 181 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। टैक्स चार्ज हैज बीन पेड,
ITC is visible in GSTR 2. ये सब conditions है, ठीक है? Credit of renovation works. आपने नया शोरूम बनाया, क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ऑब्वियस आंसर. रेनोवेशन किया, बिकॉज आपके ओई बहुत बार आते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं यार अब पूरा चेंज कर दो. सो सिर्फ फर्नीचर चेंज नहीं होता, कुछ सिविल चेंजेस भी होते हैं. सो फर्नीचर है, क्रेडिट मिलेगी. रिपेयर्स है, क्रेडिट मिलेगी. एनी एक्सपेंस दैट इज बुक्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट उसकी मिलेगी. Any expense which is capitalized in your books of accounts to the original building or whatever, credit नहीं मिलेगी. Furniture है, movable items है, credit मिलेगी. Sign board है, मिलेगी. Demo car ITC, I've already spoken on this. Now, ये लाल में एक question है. How many are Mercedes dealers here? ROTF model? I don't know whether, okay. Retail of the future, ROTF मॉडल जो अभी मर्सिडीज ने अक्टूबर 22 से लॉन्च किया है, अक्टूबर 21 आई गेस. ROTF मॉडल में क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिकॉज दे आर नो मोर अ सेलर ऑफ कार्स देयर, दे आर एजेंट्स देयर नाउ. मर्सिडीज सेल्स इट डायरेक्टली टू द कस्टमर, राइट? बिल होता है मर्सिडीज का टू द कस्टमर डायरेक्टली, आपको सिर्फ कमीशन आता है. नाउ एंटायर आर्ग्यूमेंट दैट आई एम अ सेलर ऑफ कार्स goes for a toss. So there is a problem in ROTF model. I'll just park this, I'll not go furthermore. Credit of goods in transit. आपको 31 तक का आप जब रिटर्न भर रहे हैं कोई भी मंथ का, उस महीने में जितनी गुड्स आपको मिल चुके हैं, जितने भी इन ट्रांजिट हैं ओई की तरफ से या किसी और वेंडर की तरफ से, उसकी क्रेडिट आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगी. पर आपके GSTR 2B में वो क्रेडिट ऑलरेडी आ चुकी है. तो प्लीज डिफर इट टू द नेक्स्ट मंथ, डोंट अवेल इट, बिकॉज योर गेट पास विल रिवील द एंटायर स्टोरी. ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. ITC केसेस ड्यू टू 3B 2A डिफरेंसेस. आप जिस होटल में बैठे हैं सहारा, इसने लास्ट रिटर्न कब का भरा है पता है आपको? आई डोंट नो वेदर सहारा ऑफिशियल्स आर हियर और नॉट. लास्ट रिटर्न कब भरा होगा सहारा होटल ने? GSTR 3B and 1. The last return that 3B that they have filed is December 2019. Their registration is still active. वो आज भी B2B इनवॉइसेस बना रहे हैं, सामने वाले को क्रेडिट नहीं मिल रही. GSTR 1 उन्होंने फाइल किया है फरवरी 21 तक. आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड नोटिसेस फॉर माय क्लाइंट जिन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस की थी. उनकी ITC डिनाई कर रहे हैं. एंड सहारा हैज अ स्टैंडर्ड लेटर दैट दे गिव. वी विल पे द टैक्सेस, दे डोंट से व्हेन. You will get the credit, they don't say when. Full stop. Department बोलता है उसने नहीं भरा है आपको. So this is a standard notice that each and every taxpayer of India is getting. Amount छोटा बड़ा होगा, साल इधर उधर होंगे. So there is a circular 183 जिसमें रास्ता दिया गया है. वो सर्कुलर का रास्ता ना पढ़ते हुए अगर ऊपर का पैराग्राफ पढ़ोगे, दे आर एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट लॉ था ही नहीं मैचिंग का. द सर्कुलर सेज दैट कि क्योंकि लॉ नहीं था इसलिए हम नीचे रिलीफ दे रहे हैं, राइट? एंड दिस रिलीफ इज ओनली फॉर 2 financial years 17-18 and 18-19, for 9 months of 17-18 and for full year of 18-19. कर्नाटका हाई कोर्ट इन विप्रो आई गेस हैज ऑलरेडी सेड कि 1920 में वो सर्कुलर का बेनिफिट मिलेगा. सर्कुलर बोलता है आप सर्टिफिकेट ले लो वेंडर से कि उसने भर दिया है, वो हमको दे दो, हम आपको दे देंगे ITC. 5 लाख के ऊपर अगर है ITC तो उसके CA का सर्टिफिकेट ले आओ. पर वेंडर 5 lakhs पर ईयर. बट
the crux of 183 is that the law was not there. So the law was not there up to December of 21. ठीक है? So my belief is कि आपको December 21 तक की credit 3B 2A की मैच करने की कोई जरूरत नहीं थी as per law. So please do not surrender. If you want to fight those cases, छोटा मोटा अमाउंट है, भर के निकल जाइए, that is a commercial call. But अगर बड़ा अमाउंट है, and the vendor is genuine, like Sahara is, please fight. Don't surrender. हाँ, January 22 को Section 16 was amended to say कि 2B में जितनी क्रेडिट होगी उतनी ही मिलेगी. And the entire mechanism was laid out. तो उसके बाद we don't have any possibility of fighting. So you will have to match those credits with your vendors. So this is what we tell कि आपका OE से जितना भी क्रेडिट आता है, please keep on reconciling that. अब तो OE ने भी मैकेनिज्म डाल दिए हैं, वो पीरियडिकली कर ही रहा है, पर आपके और भी बड़े वेंडर हैं. फॉर एग्जाम्पल लीज इज योर सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंस, राइट? एक स्पेयर्स है, फिर ये है, तो वहां पे बहुत सारी डिफिकल्टीज कुछ लैंडलॉर्ड्स में होती है. तो प्लीज इंश्योर कि वो क्रेडिट्स आप मैच करते रहे. गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट और कोर्ट कोई हेल्प नहीं करेगा पोस्ट January 22, बिकॉज लॉ इज वेरी क्लियर. और अभी जो एक जजमेंट आया है, आई एम गेटिंग दैट नेम, उसमें क्लियर हो चुका है कि आपको क्रेडिट नहीं दी जाएगी. Now these are some unique issues that only your sector or some other sectors also, but primarily your sector has. Sale of dealership. कोविड के बाद ज्यादा, पहले थोड़ा होता था, पर कोविड के बाद ज्यादा होना शुरू हुआ है. Where I go and I want to sell the entire dealership to someone else. So here there are two models primarily which are taken. One is the asset sale model, जहाँ पे asset plus AMC liabilities दे दी जाती है और एक नेट प्राइस अराइव करके उस पर GST चार्ज कर दिया जाता है. एंड द सेकंड मॉडल इज अ बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट, BTA, जहाँ पे पूरा गोइंग कंसर्न के बेसिस पे आपको पूरी डीलरशिप या उसका कोई डिवीजन आपको बेचा जाता है. In BTA there is no tax. In asset sale AMC liabilities there is. What would be the GST implications? Asset sale में तो क्लियर है कि आपको जो जो assets ले रहे हो उनके टैक्स रेट लग जाएंगे. But in asset sale, sorry, please ensure कि अगर आप एक बिल ले रहे हो तो वो सब चीजें अलग अलग लिख के सबका एक एक प्राइस लिख दे अंदर. डोंट टेक इट एट द लमसम प्राइस, क्योंकि उसमें क्या होता है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई इन GST, जहां पे लिखा गया है कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, तो हाईएस्ट रेट जो उसमें है जो प्रोडक्ट पे वो लगेगा. तो एयर कंडीशनर होता ही होता है, उस पर 28%, तो वो पूरी चीज पे 28% लग जाएगा. सो एंश्योर यू टेक सेपरेट बिल्स फॉर एवरीथिंग. In BTA, these are some pointers that I have जो आप ensure करें कि हो. Entire business or division in a business is transferred as a whole. वो ऐसा ना बोले कि ना मैं ये नहीं दूंगा, मैं वो नहीं दूंगा. The person buying the business will continue to do the same business. Obviously वो dealership खरीद रहा है तो उसी के लिए खरीद रहा है. Majority of the existing employees get transferred. और वो आप BTA में लिख देना. Obviously employees जाते हैं, key employees तो जाते ही जाते हैं, but please write it in the BTA. Existing contracts like lease etc. also get transferred. They get transferred via separate legal lease deeds, but please write it in the BTA. Key liabilities which are necessary to run the business also get transferred like AMC. या कोई critical loans है, OE के loans भी होते हैं, हो सके तो वो भी इसमें ले लीजिए और नेट प्राइस कम कर दीजिए. बट ट्राई टू टेक देम. नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर ओल्ड लिटिगेशन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड.
नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर पास्ट आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज. कहीं वैट की लाइबिलिटी है, कहीं कुछ है, वो आपको लेना जरूरी नहीं है बीटीए में. There are some advance rulings which are in our favor. There are some against also. But ये primarily अदानी का था जो बहुत पेपर में भी चगा कि एयरपोर्ट दे दिया, जीएसटी नहीं दिया. Compensation cess on SUV, the Cretas of the world. ठीक है, सो ये बहुत बड़ा गेम एक ग्राउंड क्लियरेंस के साथ हुआ है. ठीक है, आपकी मर्सिडीज की गाड़ी भी कोई 170 के ऊपर नहीं. सो फ्रॉम अराउंड अक्टूबर 2017 जब ये चेंज आया था, सब ने अपने ग्राउंड क्लियरेंसेस चेंज कर दी, पर ब्रोशर पुराने ही रखे. उन ब्रोशर में क्लियरली लिखा है कि 180, 185, 190 ग्राउंड क्लियरेंस. सो टाटाज went to the advance ruling in Maharashtra for Tata Harrier. उनका एक एडवांस रूलिंग आया जिसने बोला कि आपको 22% टैक्स लगेगा, 2% ज्यादा लगेगा because your ground clearance is more. They went to the appellate authority. The appellate authority no. उन्होंने बोला नहीं, आपको लोअर 20% ही लगेगा सेस. क्यों? क्योंकि आपको लेडन ग्राउंड क्लियरेंस देखना है. सो व्हाट इज लेडन अनलेडन? आप गाड़ी लेते हो, 5 बंदे की गाड़ी है, 5 बंदे बिठा लो, सामान कितना है 420 या 450 लीटर का है, वो पूरा सामान डाल दो, फिर ग्राउंड क्लियरेंस देखो कितना है. अगर वो 170 के नीचे है तो आपकी गाड़ी पे टैक्स 2% कम लगेगा. AAR ने बोल दिया. सो द स्टोरी रेस्टेड. द डिपार्टमेंट सेड ये AAR सिर्फ इनको लगेगा, बाकियों को नहीं लगेगा. So they have started inquiry pan India. सबको बुला रहे हैं जिनकी गाड़ियां क्वालिफाई करती है. So my take on this is, अगर आप ARAI सर्टिफिकेट देखते हैं, that is the only authority which certifies apart from OE. OE is an interested party, so I will not take that. But ARAI is not an interested party. It is the only certifying authority. तो उसके सर्टिफिकेट में जो लिखा है वो लेना है आपको. अगर उसमें 170 के ऊपर है तो प्लीज पे 2% मोर. एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द ओईज पार्ट. वो जो आपको टैक्स लगा के दे रहे हैं, आपको टैक्स आगे लगा देते हैं आप. बट अनफॉर्चुनेटली देयर हैव बीन एक्साइज में केस हो रखे हैं कि भाई मैन्युफैक्चरर ने गलती की तो जरूरी नहीं है डीलर भी करे, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है. अगर उस पर टैक्स आएगा तो आप पे भी आएगा और दोनों को क्रेडिट नहीं मिलने वाली. उसको भी 2% भरना पड़ेगा, आपको भी भरना पड़ेगा. एंड अभी सर ने बोला था वेफर थिन मार्जिन है, 2% प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी मींस डीलरशिप इज अप फॉर सेल. सो प्लीज इंश्योर कि ये आप बहुत ही सही तरीके से करें और ओई से एक लेटर ले लें. नो ओई इज गिविंग लेटर इंडेमनिफिकेशन जो मैं बोल रहा हूं, but at least write mails to them for indemnifying you. They will not respond, but just because you have written those mails, you will have a stand later. R ये लास्ट ईयर आया. इसमें कहा गया कि जो भी इंसेंटिव आपको मिलता है उस पर टीडीएस कटेगा. और हमारी कम्युनिटी ने बोला अगर टीडीएस कटेगा तो इनकम हो जाएगी. नहीं सर, ऐसा नहीं. टीडीएस कटना इज नॉट द बैरोमीटर फॉर रेंडरिंग अ सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे घूमने ले गया डीलर कॉन्फ्रेंस की, उसने मेरा टीडीएस काट लिया है. आप आपके एम्प्लॉय को ले गए, आपने टीडीएस काट दिया. क्या आपने क्या उसको सर्विस दी है? ये उसके काम में आता है. ये उसका टोटल जो डीलरशिप का पूरा सिस्टम है, उसमें डीलर कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड नाइट्स, ये वो सब होता है. सो टीडीएस कटने से सप्लाई ऑफ सर्विस होगी और सप्लाई ऑफ सर्विस होने से जीएसटी हो जाएगा, ऐसा नहीं. सो एंश्योर कि जहां पे टेंजिबल सप्लाई है, ठीक है, वहीं पे जीएसटी होगा.
इंश्योरेंस क्लेम्स ऑन डैमेजेस, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ गोडाउन में फ्लड आई, फ्लड में व्हीकल्स डैमेज हो गए। दो तरह के डैमेज होते हैं, एक होता है फुल्ली वो पूरा व्हीकल खराब हो जाता है, अनयूजेबल है, स्क्रैप वैल्यू रह जाती है, और दूसरा होता है पार्शियली अफेक्टेड। उस केस में अगर पार्शियली अफेक्टेड है तो क्या, क्योंकि अगर फुल्ली अफेक्टेड है, सैल्वेज वैल्यू रह गई, तो आपको पूरी आईटीसी जो गाड़ी की है वो रिवर्स करनी पड़ेगी। बट इफ इट इज पार्शियली अफेक्टेड, देन फुल आईटीसी विल बी अवेलेबल, यू डोंट हैव टू रिवर्स एनीथिंग। कार बिकेगी, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख में खरीदी है, बेच रहे हो 5 लाख में, आईटीसी 10 लाख पे मिलेगी, टैक्स जो भरना है वो 5 लाख पे भरना है। देयर इज नो इशू इन दैट। प्लस अगर आप उस गाड़ी को अच्छी कंडीशन में लाने के लिए कुछ खर्चे करते हैं, रिपेयर व्हाटएवर, तो उसकी भी आईटीसी मिलेगी। सो स्पेयर पार्ट्स आप खुद के लगवा रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग आप खुद का कर रहे हैं, तो जो स्पेयर पार्ट आपने खरीदा था उसकी आईटीसी रिवर्स नहीं करनी है, वो आईटीसी एज इट इज मिलेगी, even though the car is being sold at a lower value. Importance of e-invoices. This is for all sectors. जिस भी वेंडर से आप कोई चीज खरीद रहे हैं, इंश्योर कर लीजिए कि वो बंदा ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और अगर वो पोर्टल है उसके लिए स्पेसिफिक, उस पोर्टल पे जाके आप उसका जीएसटी नंबर डालोगे तो एलिजिबल है नहीं है वो बता देगा। ई इनवॉइस पे उसकी लिंक, इनवॉइस का जो पोर्टल है उस पे लिंक दी हुई है। वो अगर एलिजिबल है और वो ई इनवॉइस नहीं दे रहा है, तो वो जो कागज आपको दे रहा है वो रद्दी का कागज है, इट इज नॉट एन इनवॉइस, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, और ये स्पेसिफिक प्रोविजन लॉ में है। So the next wave after 3B2A is this. Please mark my words. बहुत जल्द आपको नोटिसेस आएगी कि आपने इतनी आईटीसी ली है पर ये वेंडर ई इनवॉइस नहीं इशू कर रहा है, काइंडली रिवर्स द आईटीसी। So please make this one more reconciliation. और जीएसटी इज अ रिकंसिलेशन एज में हम एंटर हो चुके हैं, हर चीज का रिकंसिलेशन ही कर रहे हैं, तो ये एक और है। आपको 1 अगस्त 2023 यानी अभी 1.5 महीना से भी कम का समय है, he can issue all those invoices, he can convert them into e-invoices। एक विंडो खोला है गवर्नमेंट जो बैक डेटिंग अलाउ करेगा। So please find those vendors out, write them mails, pressure them out, get those e-invoices done. With this, I end. Now, any questions, I'll be happy to take. Sir, regarding demo vehicles, you are of the opinion, and I am also of the same opinion that ITC is allowed. But there are so many adverse rulings which are favor and which are adverse. So what stand dealer should take? सर आपके पास ये स्टैंड लिए बगैर और कोई स्टैंड है ही नहीं। The moment, for example, let's assume you are ready to reverse the ITC. Not, is the entire transaction possible up to the sale of that vehicle? Sir, it's not possible. The moment you reduce 29%, the lowest tax bracket मैं लेता हूँ, तो आपका पूरा जो आगे तक का लॉस है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। So practically, legally ITC मिलेगी, नो इश्यू ऑन इट। आप बीयू भंडारी का एडवांस रूलिंग पढ़ोगे, उसमें भी बाकी सब वाहियात चीजें हैं, पर इस इशू पे उन्होंने बोला है कि डेमो की मिलेगी आईटीसी। वैट के लॉ में, वैट का लॉ बहुत रेस्ट्रिक्टिव था, ये तो बहुत वाइड लॉ है, ठीक है। वहां पे भी गाड़ी की क्रेडिट नहीं अलाउ थी सबको, अगर आप वैट लॉ देखें, पर उसमें भी इन्होंने बोला डेमो की आपको आईटीसी मिलेगी। Sir, in Gujarat, I have successfully got the assessments done. On file, on order, on paper, they have said ITC मिलेगी। पर आप एडवांस रूलिंग में मत जाना। It means that if they disallowed the ITC, we should file the appeal. Yes, please fight it out. Appeal
fighting it. 110% ITC मिलेगी आपको. Okay. Secondly, in case of vehicles which are in transit, okay, and for which bill is also made to the customers. So whether, because when we raise the bill in case of a vehicle which is in transit and we raise a bill in the name of customer, we pay the ITC. वो टारगेट्स तो अचीव करने थे. Exactly. Then in that case, we pay the GST, but we are not getting the ITC as the vehicles are not received. Yes. So what should be done? I mean, it is on the contrary. Sir, we see, are- the law is structured in a way that you will only be eligible for ITC when you receive the goods physically. Right? So now, just confirm one fact. जब गाड़ी ओई के वहां से निकलती है वो किसकी जवाबदारी में है? रिस्क किसकी है? अगर कल को वो ट्रक पलट गया या कुछ हुआ, whose responsibility is it? So there you can take a stand that legal ownership has passed on the gate of the OE. Hence I have received the goods. Correct. ठीक है, ये स्टैंड आप लेना चाहो तो ले लो, पर वो ऑफिसर जो आएगा ना, जिसकी आंख एक है और वो भी आधी खुलती है, वो बोलेगा ना ना गेट पास पे तो ये डेट है. सो यू विल हैव टू फेस सम म्यूजिक. और ये म्यूजिक होगा क्या, मैं बताता हूं. आपकी क्रेडिट है, नेक्स्ट मंथ आ जाती है, वो क्या करेगा, इस मंथ का भी ले लेगा, इस मंथ का भी ले लेगा, इस मंथ का भी, सबका लेके बोलेगा यहां इतने का टोटल ब्याज भर दो आप. वो आपसे आईटीसी नहीं मांगेगा. क्यों? उसको पता है नेक्स्ट मंथ मिलनी थी, पर वो इन सबको कोलेट करके 18% ब्याज लगा देगा एक एक महीने का. सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट रिस्क और कॉस्ट. Sir, then do you think that FADA should take up this matter? I mean, ITC on the demo vehicles. Sir, then I ITC believe is FADA the should take government. many issues, and this is the smallest one. No, but because of the working capital is blocked in that, no, sir, and that. I agree, sir, but ये लॉ आपके लिए चेंज नहीं होने वाला, प्लीज, क्योंकि ये हर इंडस्ट्री का तकलीफ है. No, sir. I differ with you because in case of a dealers, demo vehicles, they are for the purpose of. No, no, business. you're talking about demo, या you're talking about? No. I am talking first. I am talking about the demo vehicles. That I agree. Demo vehicles, in the case of dealers, they are for the purpose of business. For doing the business. But in case of other industries, when they capitalize the vehicle, they are not for the purpose of a demo. So. I agree. उनको तो आईटीसी भी नहीं मिलती सर. अगर मैं, जैसे मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था, पेन खरीदी मैंने, अब पेन ट्रांजिट में, आपकी भी गाड़ी ट्रांजिट में, तो पेन की क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी सर. वो लॉ सेक्शन 16 को बदलना पड़ेगा. एंड आई डोंट थिंक FADA should enter that thing. It's a very hard nut to crack. Okay. Sir, my last question. But the lowest hanging fruit is demo ITC. But in case of demo, most of the officers, I will say 100% of the officers, they are disallowing that ITC. Then we have Nah, to keep sir, on. not 100%. Sir, give me some example where ITC is allowed by, not advance ruling, by the assessing officer. Assessing officer, I can show you the order offline. I'll not share it. I will be happy to. वो मेरे क्लाइंट का ऑर्डर है, मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें उसने स्पेसिफिक इशू लिया था शो कॉज नोटिस में कि आपको डेमो कार की आईटीसी नहीं मिलेगी, और ऑर्डर जब उसने पास किया तो वो डिमांड ड्रॉप कर दी, Okay. और उसमें अपील भी नहीं करी डिपार्टमेंट ने. Oh, great. सो ऐसा नहीं है कि हर ऑफिसर. Sir, my last question. In case, 1 minute, sir. In case of bill is raised in the last month and cancelled in the next month, on or before 10th of filing the GSTR1, so whether ITC, that liability should be reduced in the month in which the bill is raised. Sir, the answer to your question is in your question itself. But I will speak on the larger issue. Please don't make it an habit. आपकी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 29, 30, 31 को बहुत सारे बिल बनते हैं और 1, 2, 5, 10 तारीख को वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, क्योंकि कस्टमर तो होता ही नहीं है. न बिल बनाने के वक्त होता है और न कैंसिल करने के वक्त होता है, न कारण बनाने का था बिल का, न कैंसिल करने का कोई कारण होता है. सो प्लीज डोंट डू इट, बट इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डू इट, यस, इन द नेक्स्ट. आप उसी मंथ कैंसिल कर दीजिए ना सर, अगर आपको जीएसटी का बेनिफिट चाहिए तो.
Sir, hello. Sir, we are from, sir, या हाँ सर, रीसेंट जजमेंट आप वैट में पूछ रहे हैं कि जीएसटी में? मैंने जानबूझ के नहीं लिया वो, क्योंकि जीएसटी में सॉर्टेड है। वैट में क्या था, जो अभी जजमेंट आया है उसमें ये था कि कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब मैं स्पेयर पार्ट के सामने स्पेयर पार्ट देता हूं। दैट वाज द इशू। So there, that issue was not clarified in the earlier judgment. That issue has been clarified now, and as per me, it is correctly said कि VAT rate जो भी आपका प्रोडक्ट था उसका, yes, same, yes. sir, पर आपके लिए तो स्पेसिफिक सर्कुलर है जहां पे आप दो रेट एक ही बिल में लगा सकते हो। स्पेसिफिक सर्कुलर है 2017 या 18 का। हाँ सर। sir, again, we are from two-wheeler industry. तो अभी हमारा जो इनवाइसिंग होता है वो टू व्हीलर का इनवाइस होता है कस्टमर के नाम से, और उसी के साथ में स्टैंडर्ड एसेसरीज करके होती है Right. जो कंपनी से लेग गार्ड वगैरह जो अलग से सप्लाई होते हैं, और उसी में हेलमेट भी होता है। हाँ बिल्कुल। और उसके साथ में वो अभी जो बात हुई इंश्योरेंस होता है या आरटीओ सर्विस चार्जेस होते हैं, तो सब में अलग अलग जीएसटी एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल तो व्हीकल पे 28 है और हेलमेट में 12% है। बराबर। तो हम वो शो करते हैं हमारी इनवाइस में, बराबर। लेकिन कभी असेसमेंट में ऐसा ना हो जाए कि वो बिकॉज अलोंग विद द व्हीकल दे विल फोर्स अस टू से कि आपको 28% भरना पड़ेगा। इज देयर एनी क्लैरिटी ऑन दैट? Yes, I apologize to you. I should have taken this issue. I thought ये टू व्हीलर वाले इतने नहीं होंगे। This is a burning issue in your industry, and many assessing officers are taking a view otherwise. My view is helmet is compulsory by law to be given. पर प्रोडक्ट दो है, ठीक है, आप अलग अलग उसको बिल कर दीजिए, नो इशू। हाँ, वो आरटीओ के लिए, राइट? इनवाइस बनाते हैं। नहीं, पर मेरे ख्याल से आरटीओ में भी नेसेसरी है कि वो सेम होगा तो ही आरटीओ होता है। बिल्कुल होता है। तो वी प्रोड्यूस द सेम इनवाइस दैट वी हैव इंक्लूडेड द हेलमेट लाइक। यस। सो जो अभी मैंने बोला एक सर्कुलर था जहाँ पे ये क्लैरिफाई किया गया कि जब रिपेयर में गाड़ी आती है तो फॉर एग्जांपल इंजन वर्क के लिए आई और उसमें लेबर कॉस्ट इज टू लो, इंजन इज टू हाई, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि आप दो रेट अलग अलग लगा सकते हो, इवन दो दी सप्लाई इज क्लब्ड। वन सप्लाई इज नॉट पॉसिबल बाय द अदर। वो सर्कुलर रेफरेंस के लिए हमको सर वो नंबर मेरे पास अभी नहीं है, आई फाइंड इट आउट एंड गिव इट टू यू। या वो सर्कुलर इस वो लीगली गलत है वो सर्कुलर, बट वो नॉनदलेस इट इज अ सर्कुलर। वो आप यूज कर सकते हो कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट सप्लाईज हैपनिंग जस्ट बिकॉज, फॉर एग्जांपल आरटीओ भी नेसेसरी है, ठीक है, तो क्या आरटीओ में उसमें डालना जरूरी है? नहीं। सो हेलमेट आप अलग चार्ज कर सकते हो, बट आर यू सी, मैं बहुत पानी जा चुका है इसमें, कैन यू चार्ज 28% ऑन द एंटायर वैल्यू? वुड इट बी अ लॉस टू यू? इट वुड बी अ लॉस देन, क्योंकि इट इज अ ग्रे एरिया, टू बी ऑनेस्ट, देर इज नो सर्टन आंसर ऑन इट, but because of that circular you can take relief and go ahead. We'll take the last two questions, please. Huh? Yes. सी हाई कोर्ट ने उसको वापस रिमांड किया है। ऑल असेसमेंट ऑर्डर्स हैव बीन क्वॉश्ड, जितने भी हाई कोर्ट गए थे, और ये कहा है कि बिकॉज द ट्राइब्यूनल हैज ऑलरेडी टेकन अ स्टैंड, द असेसिंग ऑफिसर को हम रिमांड बैक कर रहे हैं कि टेक अ फ्रेश व्यू। दे हैव नॉट स्पोकन ऑन मेरिट्स and they have categorically said that we are not speaking on merits. However, there is umpteen number of high court judgments where they say कि higher forum का जो judgment है वो नीचे वाले को follow करना है। तो ट्राइब्यूनल का जजमेंट अगर है तो असेसिंग ऑफिसर को फॉलो करना ही पड़ेगा, इट्स नॉट हिज चॉइस।
वो 6 लेके जाते हैं, पर वो जाएंगे कि आप मेरिट पे तो कहाँ, ट्राइब्यूनल में जाओ ना, पर ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मेरे को भी फेवर में दे दो, फिर मेरे अगेंस्ट भी चले जाओ. But they cannot say that we will confirm your demand and then you go there. You can straight away go to the Supreme Court or the High Court and say कि सर ये Supreme Court के against है. No, 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 no. They are separate optional supplies. They are not the vehicle itself. बहुत बार आप लोग क्या करते हो, बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन, जो जितनी एसेसरीज आप दे ही नहीं वाले हो सब लगा के रेडी कर देते हो कार, एंड देन द कार इज बिल्ड, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. इट्स एन ऑप्शनल सप्लाई. हाँ Sir, generally अमर we भाई, charge- whenever you say. Yeah, the last question. Yeah. Generally, we charge 28% on chassis plus bodybuilding work. But in case of special purpose vehicles like refer van, garbage van, Right. Ambulances. yeah, ambulances, can we charge 18%? Yes, yes, yes. वो स्पेसिफिक रेट है चैप्टर 87 में उनके लिए. Okay. उनके लिए स्पेसिफिक रेट है इसलिए. So charging 18% is correct? Yes, for those special purpose vehicles, yes. Okay. Sir, Thank you, sir. sir, hello, sir. Yeah. One, regarding, hello. कहाँ पे हैं आप? अब मैं यहाँ पे हाँ हूँ जी, सर. बिल्कुल. जी, सर ये जो हम लोग वारंटी का जो होता है, we do bill to company for warranty. तो ई बिल सेम डे बनना चाहिए. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ई बिल सेम डे बनना चाहिए, लेकिन होता क्या है, नेक्स्ट मंथ हम लोग, हमें पूरा डिटेल्स आता है उसका, व्हाट इज सैंक्शन व्हाट इज नॉट, अकॉर्डिंगली हम लोग फिर उसका ई बिल बनाते हैं रिटर्न सबमिट करने से पहले. तो इसमें कोई आगे चल के इसमें हमारे लिए कोई समस्या है फिर ये हो सकता है? सर, इनवॉइसिंग के 2 कंडीशंस है. पहला है कि आपको गुड्स डिलीवर करने हैं, दूसरा है कि मेजरमेंट उसका होना जरूरी है. फॉर एग्जांपल, आपने बोला कि मैंने ये 10 चीज लगाई है, वहां से अप्रूवल 8 का ही आया, ठीक है, तो मेजरमेंट लेटर हुआ. तो मेजरमेंट जब तक नहीं होगा तब तक आप इनवॉइस नहीं कर सकते. राइट? दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर, बट दिस इज फ्रॉम दी 50-60 साल का जो जुरिस्प्रूडेंस है उसके बेसिस पे है. आई थिंक आई एंड. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Nitesh bhai. I think most of us have been in this industry for a very long time, but your inputs today clarified a lot of confusions in our head too. And I think we have all gone out wiser from this room. Like Bhagwat Sahab and Manish also said that the department also somehow should get some sort of understanding of our industry. So similarly, I guess in the GST topic too, that is a prerequisite. But thank you for coming all the way, and we certainly feel, I think most people in the room will agree that we need a full day session. So hopefully we will be arranging that soon. more to discuss. Yes, there is a मैंने अभी lot ई-वे more. बिल तो लिया ही नहीं इसमें. आप डेमो पे करते हैं ई-वे बिल? सरप्राइजिंग, राइट? नॉट हर्ड ऑफ. थैंक यू. So I'll request Vigneshwar San, our Vice President, to please hand over the memento. सो वो लास्ट स्लाइड थी, उन्होंने बंद कर दिया. I'll send this entire presentation to you. इसमें सब कुछ It's होगा. on the next side, please. This is me and this is my firm. आपको फोटोग्राफ लेना है ले लीजिए. मेरी वेबसाइट है njjain.com. लिख लीजिए आप 98241 82629. 98241 82629. So, Jain sir, I'm sure we'll have to do many more such sessions going forward. We'll have to, just a minute please. So, yeah, of course. So, we'll be doing a lot more sessions. This is not enough. We are hungry for knowledge. And we'll do many more sessions, friends. Okay? Thank you.